کی آیت نمبر 190 سے لے کر انشاءاللہ 200 کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ کریں گے میرے انشاءاللہ۔ آج ہماری آیت نمبر 196، 97، 98 ہے۔ ایکچولی 96 اور 97 بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات تھی نا، تو میں نے سوچا 98 کو بھی ایڈ کر لیتے نا، بہت چھوٹی سی آیات تھی۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا، اور لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے۔ جو کوشش کری نا، گھبرا جائے، پیچھے ہٹ جائے، آئی کانٹ ڈو، میں نہیں کر سکتی، تو پھر وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ من جدہ، جو کوشش کرے گا وہ وجدہ، وہ اس کو پا لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا اسٹرگل کیا، کتنی محنت کی، آپ کے پاس کتنی اپارچونیٹیز تھیں، کتنی آپ نے اس کو اویل کیا۔ تو اصل بات ہے کہ ہم کچھ بھی سیکھ لیں، کوئی ایک آیت بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یاد کر لیں، تو یہ ہم پر اپنے رب کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم آیات کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196 and 197 and 198۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لا کو 2 کاؤنٹ پڑے گا نا، تو آپ دیکھیے یہاں پہ 2 شد ہے نا، ہرگز لا کی وجہ سے بھی، اور یہ جو شد ہے نا نون پہ، یہ ہرگز کا ٹرانسلیشن دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا نو، اور ایک ہوتا ہے نیور، تو یہاں پہ اسی طرح کا میننگ ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے کا آپ کو تقلب، چلنا پھرنا، الذین، یہ قلب اسی سے، دل بھی الٹ پلٹ ہوتا ہے نا، کبھی جسے کہا جائے اللہ کی یاد کے ساتھ رہتا ہے، اور کبھی اس پر شیطان کا بسیرا رہتا ہے۔ تو دیکھیے تقلب، وہ یقلب، یقلب، تقلب اسی سے، چلنا پھرنا، الذین، ان کا جنہوں نے کفر و کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع، فائدہ اٹھانا ہے، قلیل، تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم، ٹھکانا ان کا جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے، المہاد، ٹھکانا، لیکن الذین، لیکن الذین، وہ جو اتقوا، ڈری، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، نزلم، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وما، اور جو عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، خیر، بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے۔ چلیے انشاءاللہ ان آیات کی پہلے ریسیٹیشن دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی تجوید دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے سب نے مصحف کھولا، اب سب نے قرآن مجید کھول لیا ہے، تو نہیں بھی کھولا تو شاباش بھی کھول لیجئے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 196 سے لے کر 198 کریں گے، شاباش ٹائپ کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مصحف کھولا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 سے 6 دفعہ پڑھتے جائیں، اب دیکھے گا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ شبینہ گڈ، ماشاءاللہ۔ چلیے مجھے امید ہے کہ آپ بہنیں بھی کھول رہی ہوں گی، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے 196 سے 198 انشاءاللہ۔ چلیے اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، وبئس المہاد، وبئس المہاد۔
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ-साथ किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह इन्हीं आयत की थोड़ी-सी तजवीद और फिर इंशाअल्लाह इसकी इंशाअल्लाह तफसीर देखेंगे। ला यगुरन्नका, ये ला आपको 2 काउंट पढ़ना है कि देखिए एक होता है लाम फ़तहा ला, लाम फ़तहा अलिफ सुकून ला, 2 काउंट है ना, ला ला। तो आपने इसको पूरा 2 काउंट करना है, स्ट्रेच ना ला ला, ये डिफरेंस है, ठीक है ना? तो आप इस तरह से इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा। ला 2 काउंट, ये अलिफ मद्दिया है, इसको टर्म ऑफ तजवीद में अलिफ मद्दिया कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अलिफ की दोस्ती, इसकी फ्रेंडशिप फ़तहा के साथ है। इसीलिए जब भी फ़तहा के बाद अलिफ आ जाता है, कोई भी लेटर जिस पर फ़तहा हो उसके बाद अलिफ होता है, उसको 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। यगुरन्नका गुर्र र, आप देखिए अब आपने देखिए रॉ पे भी शद है और नून पे भी शद है। रॉ पे बहुत तकरार नहीं कीजिएगा, ला या गुर्र ऐसे करके ना, यानी मुसलसल तकरार नहीं, बस एक दफ़ा अगर हो गई तो ठीक है, लेकिन ये कि कोशिश कीजिएगा कि तकरार को बार-बार होने से इसको रोकेगा, ठीक है? यगुर्रन्नका रन रन, आपने इस पे इंशाल्लाह ये आपका नून मुशद्दद है ना, और आपको पता है कि जब भी नून पर शद आती है, स्मॉल सा डब्ल्यू साइन आता है, तो आप इस पर क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं ना, आप अपनी जो आवाज़ को यानी साउंड जो है वो आपकी नेज़ल कैविटी में जाती है ना, और जैसे नाक का बांसा कहते हैं ना, अब आपने इसको फॉर 2 काउंट के लिए आप होल्ड कर लें। ला यगुरन रन रन, ठीक है? आपने ऐसे करके होल्ड करना है फॉर 2 काउंट के लिए। रन्नका रन्नका, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आपने इसको होल्ड करने के बाद ना इनका दोनों एक-एक काउंट पढ़ना है। तक़ल्लुब, ठीक है? तक़ल क़ाफ हैवी रहेगा, ता लाइट रहेगा। ये ता नहीं है, ता, ठीक है? तक़ल्लुबुल्लज़ीना, ठीक है? क़ाफ को हैवी कीजिएगा लेकिन मेक श्योर ऐसे नहीं पढ़िएगा, तक़ल्लुबु क़ल्लुबु क़ल्लुबु, मेक श्योर लाम पे ट्वाइस हिट करना है कि सुनने वाले को पता चले कि आप लाम को शद के साथ पढ़ रही हैं, ठीक है? तक़ल्लुबुल्लज़ीना, अच्छा लाम की दम्मा लू, लाम दम्मा लू बिल्कुल शार्प रहना चाहिए, ठीक है? इसी तरह बुल्लज़ी ज़ी, आपने बुल्लज़ी में बा दम्मा लाम लाम शद्दा बुल लाम फ़तहा ला, ज़ी को आपने इंशाल्लाह 2 काउंट पढ़ना है। अज़्ज़ी, ठीक है ना? इसमें ये सामने आनी चाहिए। बुल्लज़ीना ज़ीना, ठीक है? ज़ी को ये आपकी या मदिया है, या साकिन है, उससे पहले कसरा आती है, तो ये या मदिया कहलाती है। इसको 2 काउंट पढ़ते हैं। ज़ाल कसरा ज़ी, ज़ाल कसरा या सुकून ज़ी, ठीक है? बस इतना डिफरेंस है। तो ये आपकी या मदिया, आप इसको नॉट लेस देन 2 काउंट, नॉट मोर देन 2 काउंट पढ़ सकते हैं, ठीक है? रू, अब ये देखिए वाव, वाव की फ्रेंडशिप किसके साथ है? दम्मा के साथ, दम्मा के साथ। तो रा दम्मा रू, रा दम्मा वाव सुकून रू,
रू, रू, रू, रू। इस तरह से आपने टू काउंट को डिफरेंशिएट करना है। रू को आपने टू काउंट किया, ये वाव मदिया हो गया। बिलद, फिल पे आपने बाउंस नहीं कीजिएगा। फिल बिलद नहीं, फिल टाइम दीजिएगा हल्का सा। फिल बिलद, लाम को लाइट रखिएगा और दाल पे फिर आपने इसको रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून 2 4 6 काउंट के साथ आप रोक सकते हैं और फिर आप दाल पे कलकला के साथ, ठीक है। मताउन, ठीक है। मता ये अलिफ सगीरा है, मैंने आपको बताया था ये भी बिल्कुल मदी तबई है, जैसे आप पढ़ते हैं ना अलिफ मदिया नेचुरल मद, ठीक है, ये बिल्कुल वही है। इसको आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है। मता, ता को फिर आइन दम तईन हो गया, लेकिन आपको पता है नेक्स्ट लेटर कॉफ है ना, तो तनवीन के बाद जब कॉफ आएगा तो आप क्या करेंगे, इख्फा करेंगे ना। तनवीन और नून साकिन के आपने 4 रूल पढ़े ना, आपने इज़हार पढ़ा है, इदगाम पढ़ा है, इख्फा पढ़ा है, इक़लाब पढ़ा है ना। तो तनवीन और नून साकिन के बाद जब हुरूफ है, जिसे कहा जाए इख्फा के लेटर्स आ जाते हैं, जो 14 लेटर्स है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, इख्फा करते हैं, साउंड ऑफ द नून साकिन उसको आप हाइड करते हैं, ठीक है। आप उसको हाइड कर रहे होते हैं ना, और ये नहीं पढ़ेंगे मताउन क़लीलुन, नहीं, आप क्या करेंगे, हल्की सी आवाज को छुपाएंगे। मताउन कलीलुन, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं कि आइन तनवीन के बाद कॉफ है, तो आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो जबान है वो कॉफ के मखरज के पास रखें इंशाअल्लाह, और फिर आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह आपका सही से अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। क़ैली ली आपका अगेन या मतिया आ गई, तनवीन के बाद अगेन सा आ गया जो कि इख्फा का लेटर है, तो इसमें भी आपने लून नहीं पढ़ना, लून करके सुम्मा पे जाना है, ठीक है। अब सुम्मा को देखिए, सुम्मा, सुम्मा, ठीक है, ये सीन नहीं है, सा है, ऐसा, ठीक है। सुम्मा, तो मेक श्योर सुम्मा के अंदर आपने क्या करना है, मीम पे शद है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसको पहले गुन्ना करना, जब भी मीम विद शद्दा, नून विद शद्दा, इस पर जब भी गुन्ना करेंगे ये मोस्ट कंप्लीट गुन्ना होता है। इसको रैंकिंग ऑफ गुन्ना, मरातिबुल गुन्ना के हिसाब से इसको हम कहते हैं अकमल गुन्ना। इसको हम क्या कहते हैं, अकमल गुन्ना, अकमल गुन्ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अकमल गुन्ना। उसके बाद देखिए कि सुम्मा के बाद देखिए म, इस पे आपने झटका देना है। हमजा विद सुकून ऑलवेज आप उसमें जर पैदा करेंगे, नॉट मा वा हुम, नो, म वा हुम, वा को आपने टू काउंट पढ़ा, अगेन मद्दुल क़तई है। हुम हा की दम्मा और फिर मीम साकिन को वाज़े कीजिएगा, म वा हुम, ठीक है। हुम आपने पूरा मीम का सुकून का जो साउंड है कंप्लीट किया, ये नाक़िस गुन्ना है, ठीक है। वो फिर मैंने यहाँ रोका था, सॉरी, आगे देखिए जहन्नम, ठीक है, अगर आप रोकते हैं तो आप इसको साकिन कर देंगे, जहन्नम, ठीक है। नून पे आपने पूरा कंप्लीट आपने गुन्ना किया, अकमल गुन्ना, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, एंड देन मीम को जज़म दे दी, जहन्नम, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जहन्नमु वबिअसल मिहाद। अब यहाँ पे देखिए बी पे आपने अगेन बा नहीं करना, बेअसल नहीं, बे नहीं है, बा कसरा बी, जैसे लेटर बी होता है ना वो, वबिअसल मिहाद, ठीक है। लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, हमजा विद सुकून ऑलवेज जर के साथ होगा, और मिहाद पे जब आप रोकेंगे तो ये आपकी मद्दुल आरिद लिस्सुकून है, जो कि आप 2 4 6 काउंट के साथ रोक सकते हैं, और ये आपकी दाल पे विद कलकला के साथ, ठीक है। आगे देखिए, लाकिनिल लज़ीना, ला 2 काउंट, नॉट लाकिनिल लज़ीना, ला स्ट्रेच 2 काउंट, लाकिनिल लज़ी, दी अगेन आपको बता चुकी हूँ, ये आपकी या मतिया है, लाकिनिल लज़ीना तक़ौ, तक़ौ, ठीक है। ता पे आपका शद्दा है, आप इसको ट्वाइस हिट करेंगी, नत्तक़ौ, औ बौ तौ, ये आपका कौ, ये आपका लीन है, आपने इसको ऑलमोस्ट 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है, वाव लीन।
रब्बहुम रॉ हैवी रखिएगा, नॉट रब्बहुम, रब्बहुम बा को हिट ट्वाइस कीजिएगा, हुम मीम पे नाक़िस गुन्ना है, लहुम हुम पे अगेन देखिए मीम पे नाक़िस गुन्ना, पूरा साउंड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? नॉट होल्ड लहुम, ऐसे करके आपने होल्ड नहीं करना, ठीक है? जन्नातुन, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जन, तो जन्नातुन में देखिए अगेन आपने नून पे आपने होल्ड फॉर टू काउंट बिकॉज़ ये अकमल गुन्ना है एंड देन स्ट्रेच फॉर टू काउंट जन्नतुम, ठीक है ना? तो मेक श्योर ना भी टू काउंट आपका होना चाहिए। अब देखिए तनवीन के बाद ता आ रहा है ना, तो ये क्या है आपका अगेन इख्फा हो गया। अब इसको हैवी नहीं कीजिएगा इख्फा को, क्योंकि ता इसका लाइट लेटर है ना। जन्नतुम तजरी, नॉट जन्नतुम, ऐसे करके साउंड आप उसको नाक में लेके जा रहे हैं, नहीं। एयर आपकी आपके मुंह से ही निकलेगी, मगर मेक श्योर आपने करना क्या है, ता के मखरज के पास अपनी टिप ऑफ द टंग को रखिएगा, क्लोज उसके रखिएगा। तजरी आपका इख्फा लाइट होगा यहाँ पे, जीम पे कलकला, री या मदिया, आपको पता है या की दोस्ती किसके साथ है, कसरा के साथ। ये टू काउंट पढ़ेंगे आप, या मदिया मिन तहती हल, ठीक है? अब देखिए नॉट म्यू हैवी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ता लाइट लेटर है, मी तहतीहल अनहार, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, लाइट इख्फा करना है, नून साकिन के बाद ता आ गया और हा का साउंड वाज़ेह कीजिएगा, तहतीहल, लाम पे आपने बाउंस नहीं करना, हल ऐसे करके बाउंस नहीं कीजिएगा, हल अनहारू, नून पे आपका देखिए नून साकिन के बाद लेटर हा आ रहा है, ये आपका इज़हार हलक़ी है। आपने पढ़े हैं ना इज़हार के लेटर हमज़ा, हा, आइन, हा, गॉइन, ख़ा, ठीक है? गॉइन, क़ा, सॉरी हाँ, ये आपने पढ़े हैं ना हाँ, गइन ख़ा ये आपने पढ़े। तो ये जो लेटर्स हैं जब भी नून साकिन तनवीन के बाद आ जाए, तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाता है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते या उस पे होल्ड नहीं करने के लिए कह रही, बट आवाज़ साउंड को वाज़ेह कीजिएगा। अनहार पूरा साउंड कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये नाक़िस गुन्ना है ना। तहतीहल अनहार, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ को आपने टू काउंट पढ़ना है, रू रा दम्मा रू, इसको आपने हैवी पढ़ना है, खालिदीना, खालिदीना, खा फुल ऑफ माउथ के साथ टू काउंट, लिदी या मदिया फीहा, फी आपकी या मदिया है और हा अलिफ मदिया है, दोनों को आपने टू टू काउंट करना है। इसको सर्कल कर सकते हैं, इसमें गलती हो सकती है, ठीक है? फीहा, फीहा नुज़ुलम, अब देखिए नुज़ुलम, अब आप लन नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि तनवीन की आवाज़ मीम के अंदर मर्ज हो रही है। आपने पढ़ा है ना यरमलून लेटर्स, जो कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून आ जाते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, तो होता ये है कि जो तनवीन की आवाज़ है, अब यहाँ पे मीम आ रहा है ना, तो आवाज़ तनवीन की कंप्लीटली मर्ज हो गई है मीम के अंदर, मीम साकिन के अंदर, ठीक है ना? तो अब ये जो मर्जिंग है, ये जो इदगाम है, ये एक अब साउंड का दूसरे के अंदर मर्ज हो जाना है, ट्रांसफर हो जाना है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? इदगाम, इदगाम, ठीक है ना? तो नुज़ुलम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप उसको होल भी कहेंगे, आप कहेंगे ये कंप्लीट इदगाम है विद गुन्ना, गुन्ना के साथ है, नुज़ुलम, ठीक है? नुज़ुलम, इस तरह से आप होल्ड करेंगे, ठीक है? मीन, अब यहाँ पे आपका देखिए नून साकिन की आवाज़ है, नून साकिन के बाद लेटर आइन आ रहा है, और आपको पता है कि नून साकिन और तनवीन के 4 रूल में से एक रूल है इज़हार। जब भी नून साकिन के बाद हमज़ा, हा, आइन, हा, गइन, ख़ा लेटर्स आते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं, मिन इंदिल्लाह, ठीक है? तो आपने क्या करना है, नून साकिन की आवाज़ को वाज़ेह करते हुए इंदिल्लाह, अगेन देखिए नून साकिन के बाद दाल है तो इख्फ़ा करेंगे, लाइट इख्फ़ा, और जब आप इसको रोकेंगे तो 2, 4, 6 काउंट के साथ रोकेंगे, अगर आप रोकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इंदिल्लाही, ठीक है इंशाअल्लाह। मगर मैंने रोका था, तो फिर हा के साउंड को वाज़ेह कीजिएगा। वमा, मा आपका अलिफ मद दिया, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जिसे कहा जाए टू काउंट,
लिल्लाहि अगेन इंदल्लाह, ठीक है? तो आप अगेन नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, आपने इख्फा करना लाइट एंड देन देखिए द लॉ लाम जलाला को हैवी कीजिएगा। जब भी वर्ड अल्लाह का लाम जिसको लाम जलाला कहते हैं, उससे पहले दम्मा या फ़तहा आ जाए तो हैवी हैवी पढ़ा जाता है और अगर कसरा आ जाए तो उसको लाइन पढ़ा जाता है, ठीक है? इंदल्लाहि खैरुल खैरुल अब आई, बई, तई खैरुल नहीं है, ख़ोई ख़ोई ठीक है? ख़ोई ये आपका लीन है इंशाअल्लाह, ठीक है? लीन का 2 ही लेटर्स है ना, वाव और या, जब भी उनसे पहले फ़तहा आ जाए, ठीक है? वाव साकिना या साकिना से पहले फ़तहा आ जाए, तो ये लीन के लेटर्स हैं, ओनली 2 लेटर्स, तो खैरुल लिल अबरार, ठीक है? आपने लाम को हिज करना है, तनवीन के बाद लाम है तो खैरून होना चाहिए था, लेकिन तनवीन की आवाज़ कंप्लीटली लाम में मर्ज हो गई है, जो कि यरमलून का लेटर्स है, तो ये भी इदगाम कामिल है विदाउट गुन्ना, गुन्ना नहीं करेंगे। लिल आपने इस पे बाउंस नहीं कीजिएगा, अबरार, ठीक है? अब बा पे आपका कलकला और रॉ पे रोकेंगे तो रॉ को हैवी करके रोकिएगा, ठीक है? चलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। थोड़ी-सी इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर देख लेते हैं ताकि जब आप इसको याद करें तो आपको अच्छा फ़ील हो ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, और जिन लोगों ने कुफ़्र किया उनका शहरों में चलना-फिरना आपको हरगिज़ धोखे में ना डाले। क्या मुराद है शहरों में चलने-फिरने से? शहरों में चलने-फिरने से मुराद है तिजारत के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। अल्लाहू अकबर! अब देख लिए कि ये जो तिजारती सफ़र होते हैं वो किसी मकसद के लिए होते हैं ना, उसके पीछे मकसद क्या होता है? वसाइल की फरावानी, यानी मुसलसल अपनी जिसे कहा जाए मुसलसल जो भी वसाइल हैं उनको और ज़्यादा मतलब उसको फरावानी दी जाए ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ़्र किया, उनका शहरों में चलना-फिरना आपको हरगिज़ धोखे में ना डाले। काफ़िरों की जो दौलत है, उनकी जो सियासी क़ुव्वत है, वो ईमान वालों को धोखे में ना डाले ना। देखिए मुसलमान जब मुश्किल माशी हालात या देखिए महरूमियों या अज़ियतों या तकालीफ या ऐसे हालात जो कि अच्छे नहीं होते मतलब जैसे तो ऐसे हालात में आप देखिए ना कि मुसलमान जब इस तरह की चीज़ों के अंदर सफ़र करते हैं, अब आज भी देखिए आज मुसलमान कितना सफ़र करते हैं ना, तो काफ़िरों के हालात मुसलमानों को खटकते हैं कि अल्लाह ताला हम तो मुसलमान हैं, फिर हमें इतनी माशी तकलीफ़ क्यों आ रही है? हम क्यों इतनी अज़ियतों से गुज़र रहे हैं? हमें क्यों इतनी तकालीफ़ दी जा रही है? हमारे ऊपर क्यों इतने प्रोपेगेंडे किए जाते हैं? हमारे हालात इतने ख़राब क्यों हो जाते हैं? तो काफ़िरों के हालात तो उनको बड़े खटकने लगते हैं, इनके दिल में एक तरह से कसक पैदा हो जाती है। लेकिन असल बात है कि ये दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा-सा सामान है। आज इस दुनिया का जो साज़ो-सामान जितना भी दुनिया के लिए ज़रूरी है, मुसलमान सिर्फ़ उतना ले लेता है ना, और इस साज़ो-सामान को जो ज़्यादा होता है वो अपने लिए नहीं लेता क्योंकि वो एक तरह से फ़ितना है। तो याद रखिए जब कभी आपको ऐसा लगे कि आज मुसलमानों के साथ इतना कुछ क्यों हो रहा है, मुसलमानों के माशी हालात क्यों इतने ख़राब है, क्यों जिसे कहा जाए मुल्क के मुल्क जिसे कहा जाए एक तरह से बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। सियासी क़ुव्वतें स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही और जो काफ़िर हैं वो तो खुशी से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनको तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। जब मुसलमान एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनका एक शहर से दूसरे शहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको इतनी सर्चिंग की जाती है, इतना कुछ उनको देखा जाता है, उनका हर चीज़ चेक होता है। एक काफ़िर है मज़े से एक शहर से दूसरे शहर में और जिसे कहा जाए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चला जाता है, उसको तो कोई नहीं रोका जाता। तो ऐसे मौके पर जब कभी खटक आए, जब कभी कसक आए, तो समझ लीजिए ये दुनिया का थोड़ा-सा सामान है। ये जो चलना-फिरना है ना बहुत टेम्परेरी है। ये जो वक़्ती फ़ायदे हैं ना, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं मताउन क़लील, बहुत थोड़ा-सा फ़ायदा एन्जॉय कर लो, लेट्स गो एन्जॉय। लेकिन फिर क्या होगा? सुम्मा मअवाहुम जहन्नम।
फिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, वबिअसल मिहाद, अब वो बहुत बुरा ठिकाना है, बिछोना है, अल्लाह ना करे आग का बिस्तर कैसा होगा। ठीक है, बहुत थोड़ा फ़ायदा याद रखिए, इससे मुराद दुनिया की दौलत है। दुनिया की दौलत कितनी भी आपकी मेंशन बन जाए, आपकी पैलेस बन जाए, फ़िरौन को देखिए, क़ारून को देखिए, आप किस-किस को नहीं देख सकते, आप देखिए हर एक को देखिए, क्या कुछ दुनिया की फ़रावानी दी मिली हुई थी, कौमें हूद को देखिए, आद को देखिए, समूद को देखिए, क्या कुछ दुनिया की दौलत नहीं थी। याद रखिए, ये दुनिया की दौलत चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ए अल्लाह! आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी नहीं है, बस तू अंसार और मुहाजिरीन में सुलह को बाकी रख। असल ज़िंदगी मोमिन के लिए आखिरत की ज़िंदगी है।" इसी तरह एक बार सियदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चटाई पर लेटे देखा, तो क्या हुआ कि उनके पहलू, उनके बैक पर चटाई का निशान देखकर रोने लगे। अब देखिए, साहबा कितनी मोहब्बत करते थे ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब चटाई का निशान देखा तो रोने लगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रहे हो उमर? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्रा और कैसर तो ऐश की ज़िंदगी गुज़ार रहे, ये बड़े-बड़े जो जिसे कहा जाए उस वक़्त के बादशाह थे किस्रा और कैसर, तो ऐश की ज़िंदगी गुज़ारे और अल्लाह का रसूल का ये हाल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ये पसंद ना करोगे कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? कितनी बड़ी बात है ना? आज दुनिया में कितनी चीज़ें हैं। आप एयरपोर्ट पे जाएँ, आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहें, आपको रोक दिया जाता है बाज़ औक़ात तआस्सुब की बिना पर, बाज़ औक़ात आपकी जिसे कहा जाए आइडेंटिटी की बिना पर आपको बड़ी पोस्टिंग दी जाती है। ये तो दुनिया का असल बात है, ये दुनिया इन मोमिन के लिए क़ैदख़ाना है। कुन फ़ि दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरिस सबील, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम क्या हो, ट्रैवलर हो या फिर तुम स्ट्रेंजर हो, मुसाफ़िर हो, है ना? यही बात है कि अगर तो इन मोमिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी क़ैदख़ाना है और क़ैदख़ाने में आप कितना कुछ सामान जमा कर लेंगे, क्या कुछ दुनिया की नेमतों को ले लेंगे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितनी बड़ी बात की, क्या तुम ये पसंद करोगे उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आख़िरत? तो जब कभी किसी भी हालात में आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगे कि मुसलमान होने की वजह से आज कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जॉब के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से या जिसे कहा जाए पॉलिटिकल लेवल के हवाले से, सियासी लेवल से, तो आप ऐसे मौके पर बस ये सोच लीजिए, हमारे लिए तो आखिरत है ना। तो आज दुनिया में अगर तकलीफ़ आती है तो कितने दिन की है। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम दिन कितना रहे दुनिया में कहा जाएगा क़ाल क बल लबिस्ता मिअत आमिन, यानी कहने का मकसद है वो कहेंगे कि हम दिन का कुछ ऐसा ठहरे ना, यौमन औ बअद यौम, इस तरह का वर्ड आता है। तो अल्लाह मतलब दुनिया का जितना भी फ़ायदा आपको मिल जाए, दुनिया की सारी नेमतें जो आप चाहते हैं, अब देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कुछ किंगडम दी हुई थी ना, लेकिन क्या हुआ वो किंगडम उनके साथ चली गई, वो उनकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गई ना। तो कहने का मकसद है जिसको जितनी बड़ी भी दुनिया मिल जाए, लेकिन असल ज़िंदगी एक मोमिन की वो आखिरत की है। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के अंजाम पर नज़र रखते हुए फरमाया कि असल चीज़ जो इंसान को कल जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेगी, वो ईमान से महरूमी है। अल्लाहू अकबर! आज काफ़िर बहुत मालदार है, बहुत कुछ तरक्की कर रहा है, लेकिन ये दुनिया के धोखे में है। आज दुनिया का धोखे की वजह से वो जो तरक्की कर रहा है, कल उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में भी इस बात को मेंशन किया है, मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू वला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद। अल्लाह ताला की आयत में नहीं झगड़ा करते, मगर वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया तो उनका शहरों में चलना-फिरना आपको धोखे में ना डाले।
सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 4 है। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मुत्तकियों को अपनी मेहमान नवाज़ी की तरफ तवज्जो दिलाई कि जो कुछ अल्लाह के पास है ना, वो असल में बेहतर है और इनका ठिकाना क्या है? जहन्नुम में। कितना बुरा बिछोना होगा। दोज़ख के बाब में हदीस आती है नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से और ये सहीहैन की रिवायत है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि कम से कम दोज़ख का अज़ाब ये होगा कि आग की जूतियाँ उन या जिसे कहा जाए कम अज़ाब वाले लोगों को दोज़खियों के पाँव में पहना दी जाएगी, जिनसे इनका जिसे कहा जाए दिमाग जो उनका भेजा है वो खौलने लगेगा। जिस तरह आप देखिए देग में पकते हुए कोई भी चीज़ खौलने लगती है ना, तो ये सबसे कम अज़ाब जो जहन्नमियों को दिया जाएगा कि उनको आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका भेजा, उनका दिमाग, उनका ब्रेन खोलेगा। अल्लाहू अकबर! दुनिया में आप सोचिए कोई भी तकलीफ़ आती है, एक ये तकलीफ़ जिसमें उनको आग की जूतियाँ पहनाई जाएँ और उसके बाद दिमाग खोलने लगे हंडिया की तरह, कैसा लगेगा? इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए, असल बात है अल्लाह का तक़वा। दुआ माँगा कीजिए, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। जो अपने रब से डर गए, उनके लिए बाग़ात हैं, जिसके नीचे क्या होंगी? नहरें जारी होंगी। दुनिया में भी आप देखिए बहुत से लोगों के मेंशन होते हैं और ऐसे-ऐसे उनके मेंशन होते हैं कि साइड से आगे से दरिया बह रहा होता है, पीछे से पूरा एक तरह से बहुत खूबसूरत सा गार्डन होता है। लेकिन क्या दुनिया के जिसे कहा जाए बागात, क्या दुनिया की नहरें, ये तो कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और देखिए दुनिया के अगर ऐसे बागात मिल भी जाएँ, ऐसे रिवर्स मिल भी जाएँ, ऐसे मेंशन मिल भी जाएँ, तो क्या आप और मैं हमेशा रहेंगे? हमेशा तो नहीं रहेंगे। यहाँ का मालिक मुझे और आपको रहने तो नहीं देगा। ये हमारा घर है ही नहीं। ये अल्लाह की जानिब से मेज़बानी होगी। अल्लाहू अकबर! इमेजिनेशन में लाएँ, इसको महसूस करें। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आपको ऑनर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपकी मेज़बानी करेगा। दुनिया में भी कोई हमें दावत पे बुलाता है, हमें प्रोटोकॉल देता है, हमें इज़्ज़त देता है, हमें कितना अच्छा लगता है ना? और हम आके बताते हैं बहुत अच्छा लगा, हम गए थे दावत में, बहुत अच्छे से मेज़बानी की, बहुत अच्छे से अल्लाहू अकबर जिसे कहा जाए, हमारा जिसे कहा जाए ये हुआ ना। तो असल कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह की तरफ से मेहमानी ना, तो ये इसको महसूस कीजिए। तो वो लोग भी जो अल्लाह की खातिर नमाज़ों के लिए जाते हैं, तो वो उनके लिए भी अल्लाह ताला मेहमानी करते हैं। जो अल्लाह ताला के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। तो असल बात है अगर मैं और आप रब की जन्नत चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है रब का डर और अल्लाह का डर इंसानों को गुनाहों से, गलतियों से, गलत कामों से रोकता है। रब का डर इंसान से अल्लाह की रज़ा के काम करवाता है और रब के डर के बगैर जन्नत का हुसूल आप देखिए मुमकिन ही नहीं है। और तकवा है क्या? याद रखिए तकवा यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, तो ये तकवा की जज़ा है। अगर आज आप अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो उसका बदला क्या है? जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला का इरशाद है, ये हदीस कुदसी है कि मैंने अपने साले और नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं, जिन्हें किसी आँख ने ना किसी कान ने ना सुना, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी के गुमान और ख़्याल में वो आई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, "अगर चाहो तो इस आयत को पढ़ लो, सो किसी फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून।" सो किसी को नहीं मालूम जो सामान आँखों की ठंडक का उनके लिए जन्नत में छुपा कर रखा गया है। ख़ालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला हमेशा के लिए उनके मुक़द्दर में कर देगा। दुनिया की हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की मशक्क़त, हर किस्म की इनात जो भी दुनिया में सामना करना पड़ेगा, वो सब कल ख़त्म हो जाएँगी। ये जन्नत हमेशा रहने वाली है। कदूरत से पाक सलामत दिल उसमें जाएँगे, जो खुशी से मुसर्रत से, तरोताज़गी से ताज़ा होंगे। अल्लाहू अकबर! और बताया नुज़ुलुम इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेहमानी है। यानी इसके माने सवाब के हैं। ये नुज़ुलम का मतलब है इसके माने सवाब है और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से जिसे कहा जाए उतारा गया यानी
مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے، اور جو ابرار کے پاس ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ابرار یاد رکھیے وہ ہوتے ہیں جن کے دل پاک ہوں اور جو اللہ کی اطاعت گزار ہوں، ان کے اقوال اور افعال بھی نیک ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیا ایک بار سیدنا عمر، نہیں، یہ بات تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وما عند اللہ خیر الابرار میں اس کا مطلب ہے کہ جو جن کے پاس دنیا کے سامان اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ نیک لوگوں کا۔ تو یاد رکھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک نہ، یقین ہو کہ اللہ کی عطا بہت بڑی ہے۔ انسان کفر کے نتیجے میں جو دیکھتا ہے کہ کفر اتنا ترقی کر رہا ہے اور کیا کچھ دنیا کی نعمتیں اس کو ملیں گی، لیکن جب آپ تقوی کو اڈاپٹ کریں گے اور اس کے انجام پر غور و فکر کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ واقعی یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنات ہوں گی ہمیشہ کی، تو یہ بہت بہتر راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی جسے کہا جائے گرامر کے لیسن کی طرف، اور ہم گرامر کے لیسن کی طرف چل رہے تھے اور ہم نے الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا ماضی مجہول کو دیکھ رہے تھے، اور ماضی مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسو، یعنی آپ نے ماضی معروف کو دیکھا تھا اور ماضی مجہول کو دیکھا تھا نا۔ ماضی معروف کیا ہوتا ہے؟ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا دوں، ماضی معروف اور ماضی مجہول کو، ماضی معروف جس میں فاعل نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ماضی مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل ان نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی معروف کے تین اوزان ہیں، فعل، فعیل، فعولا۔ اسی طرح دیکھیے اگر آپ ماضی مجہول کی بات کرتے ہیں تو ماضی مجہول کا صرف ایک وزن ہے، اور وہ کون سا وزن ہے؟ فعلا، فعلا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مجہول کے اندر دیکھیے میں نے ایک چیز جو آپ کو مینشن کی تھی، جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ماضی مجہول فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور اس میں جو فاعل ہے نا وہ بیسیکلی جو فاعل ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، یعنی جو بیسیکلی نائب فاعل کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور جو فاعل ہے وہ ایز اے نائب فاعل کے طور پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ یعنی مفعول بیسیکلی ایز اے نائب فاعل کے طور پر ریئیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ فاعل کا اعراب کیری کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے فتح، 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 فتحت، فتحت، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحت، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا، ٹھیک ہے۔ یہ گردان آپ کے سامنے ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے شاید بنا لی ہوگی، آئی تھنک سو، لاسٹ کلاس میں نے آپ سے کہا تھا آپ فعل، فاعل، فعولا کے وزن پہ گردان بندائیے جو کہ ماضی معروف ہے، اینڈ دین مجہول۔ پھر مجہول کی کچھ اگزامپل آپ کو دیے جا رہی ہیں، ہو بیسا، حبسا سے ہو بیسا، دیکھیے فعلا کا وزن ہے نا تو ہو بیسا، ہو بیسا ماضی مجہول پیسو وائز ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ پیسو ہے۔ المجرمون یعنی کیا مراد ہے؟ حبسہ قید کیا گیا، کس کو قید کیا گیا؟ المجرمون، جسے کہا جائے مجرموں کو، کرمنل کو نا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرمون یہ تو اس کی فائنلی حالت ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اس کا مفعول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اعراب کیری کر لیا ہے فائل کا، تو لہٰذا یہ نائب فائل کہلاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، نصر المظلوم، مظلوم مدد کیا گیا، شرب اللبن، دودھ پیا گیا، قتل السارق، چور قتل کیا گیا، متى ضرب، وہ کب مارا گیا۔ تو آپ سب کے اندر دیکھیں گے الباب، المظلوم، اللبن، السارق، تو یاد رکھیں یہ سارے نائب فاعل ہیں۔ یہ ہے جسے کہا جائے مفعول، لیکن اس نے اعراب کیری کر لیا ہے فاعل کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ اب انشاءاللہ پڑھیں کہ لاسٹ کی جو سورہ ہے، لاسٹ کی 30 جو اس کے اندر آیت ہے نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب خلقت سے خلقت بن گیا، پیدا کیے گئے، خلقت پیدا، کیا ہوا؟ پیدا ہوئی یا پیدا پیدا کی، لیکن جب پیسو وائز آتا ہے خلقت مجہول تو پیدا کیے گئے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کی طرف کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور رفعت سے رفعت، رفعت سے رفعت، رفعت
एक्टिव वॉइस है। हुरूफ-ए-यात पैसिव वॉइस कि और आसमान की तरफ कि कैसे उसे उठाया गया, कैसे उसे उठाया गया। ये नहीं कि उठाया, उठाया गया दैट्स द पैसिव वॉइस। व इलल जिबालि कैफ़ा नुसिबत और पहाड़ों की तरफ कि कैसे वो नुसिबत नसब गाड़ने की मीनिंग में, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर गाड़ देना, तो नुसिबत नुसिबत तो आप कहेंगे कि देखिए नसबत से नुसिबत ये क्या है? पैसिव वॉइस है। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत और ज़मीन की तरफ कि कैसे वो बिछाई गई सतह कहते हैं ना सुतिहत से सुतिहत ठीक है? सतहत से सुतिहत ये क्या है? पैसिव वॉइस है। फ़ुइलत के वज़न पर है तो और ज़मीन की तरफ कि कैसे वो बिछाई गई। अच्छा अब आगे देखिए मुतअद्दी इलल मफ़ऊलैन ऐसे अब मुतअद्दी अफ़आल जिन्हें अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए बाज़ औक़ात एक मफ़ऊल नहीं बल्कि 2 मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? कुछ ऐसे जिसे कहा जाए मुतअद्दी वर्ब होते हैं, जिसे कहा जाए उनको अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ़ 1 मफ़ऊल नहीं बल्कि 2 मफ़ऊल चाहिए होता है। तो उसमें से एक है हसीबा, हसीबा हामिद, हसीबा गुमान किया, क्या गुमान किया? हामिद ने महमूदन महमूद को। अब बात अधूरी है, हामिद ने महमूद को गुमान किया। अब क्या गुमान किया? सवाल आता है ना, बात इनकम्प्लीट है। अगर मैं कहती हूँ हसीबा हामिदुम महमूदन हामिद ने महमूद को गुमान किया। अब बात आपको इनकम्प्लीट लग रही है, क्या गुमान किया? अब मैं अगर कहती हूँ हसीबा हामिदुन महमूदन आलिमन हसीबा गुमान किया हामिद ने महमूद को आलिमन आलिम अब बात समझ आ गई कि जिसे कहा जाए हामिद ने महमूद को आलिम गुमान किया तो बात कंप्लीट है ना। तो कहने का मकसद है माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाने के लिए बाज़ औक़ात 2 मफ़ऊल चाहिए होते हैं, एक मफ़ऊल से बात मुकम्मल नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है? 2 मफ़ऊल लाना पड़ता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए कि यहाँ पे हसिबा हामिदुन महमूदुन आलिमन हसिबा ये वर्ब है, हामिदुन इसका फ़ाइल है, महमूदुन ये मफ़ऊल है और फिर जिसे कहा जाए आलिमन ये मफ़ऊल जिसे कहा जाए सानी है, दूसरा मफ़ऊल है। ठीक है? तो अब आप इसको इस अंदाज़ से कह सकते हैं। ठीक है? याद रखिए जितने भी मफ़ऊल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? याद रखिए नसबी हालत में होते हैं, ठीक है? जितने भी मफ़ऊल हैं, वो नसबी हालत में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, अब आप इसको पैसिव वॉइस में लेके जाएँ, हसीबा के बजाय हुसीबा, अब ये पैसिव वॉइस ले जाएँ, फ़ुइला हुसीबा का वज़न है, हुसीबा महमूदुन आलिमन। गुमान किया गया महमूद आलिम, गुमान किया गया महमूद अब देखिए यहाँ महमूदन क्या था? मफ़ऊल था, लेकिन अब यहाँ पे महमूदन क्या है? ये नाइब फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि इसने इराब कैरी कर लिया है फ़ाइल का। तो अब क्या? हुसीबा हुसीबा महमूदुन गुमान किया गया महमूद क्या गुमान किया गया? आलिमन, आलिमन। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 मफ़ऊल वाले मुतअद्दी मजहूल फ़िल से फ़ाइल को किस तरह से आप ऐड करेंगे? याद रखिए अगर 2 मफ़ऊल हैं, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, तो पहले मफ़ऊल को तो आप नाइब फ़ाइल बनाएँगे, लेकिन दूसरा मफ़ऊल मंसूब ही रहेगा। दूसरा जो मफ़ऊल है, वो मंसूब ही रहेगा, उसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हमारी माज़ी की चीज़ें कंप्लीट हुई। हमने माज़ी के अंदर माज़ी मजहूल, माज़ी मारूफ़ देख लिया। इसके अलावा हमने लाज़िम और मुतअद्दी को देख लिया। लाज़िम में मैंने बताया था कि अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मुतअद्दी में अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए जिसे कहा जाए फ़ाइल के अलावा
मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आपने एक्टिव और पैसिव देखा, माज़ी मारूफ़ और मजहूल मारूफ़ के अंदर फ़ाइल नून होता है और मफ़ऊल के अंदर फ़ाइल मफ़ऊल का ज़िक्र होता है, यानी फ़ाइल अननोन होता है। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिसालें देखी। अब इंशाअल्लाह हम मुदारे की तरफ चलेंगे। मुदारे कौन होता है? एक वर्ब होता है जो कि हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? यानी जो फ्यूचर है, हाल यानी मुस्तक़बिल, फ्यूचर और हाल यानी प्रेज़ेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं? यानी प्रेज़ेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे यशरबु, शरिबा यशरबु, यशरबु, अब आप कहते हैं वो पीता है या वो पिएगा, वो पीता है या पिएगा। याद रखिए अलामत मुदारे कुछ हैं, या, ता, अलिफ, नून, या, ता, अलिफ, नून, या, ता, अलिफ, नून, ठीक है? हमज़ा नून कह लीजिए। अच्छा, अब इसकी गर्दान आपने बनानी है और वही फ़अला के वज़न से फ़अला यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अला, सॉरी यफ़अलु, यफ़अला, यफ़अलु। अच्छा, थोड़ा-सा यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने किस अंदाज़ से दिया है ताकि आपके ज़हन में रहे। पहले देखिए यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अली, अफ़अलु, ठीक है? तो यहाँ पे हर जगह देखिए इंशाअल्लाह इसकी जब आप गर्दान बनाएँगे ना तो आपको इस अंदाज़ से बनानी होगी यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। लेकिन यहाँ किस अंदाज़ से दिया हुआ है इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि जो ये वाला पेज है ना कि इसमें ये कैसे दिया हुआ है ना, आप इंशाअल्लाह इसको ये जो मुदारे है ना उसको आप करैक्टर मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि आपने जैसे माज़ी का इराब देखा था ना माज़ी जो है फ़तहा पर मबनी है, मुराद है कि हमेशा फ़तहा पर एंडिंग होती है। शरीबा तौलबा, इसी तरह क़दरा, नसरा, कतबा, आप हमेशा देखते हैं फ़तह पे एंडिंग है ना, लेकिन मुदारे का इराब होता है, ठीक है? मुदारे का इराब होता है, या तो वो मरफ़ू होगा, या फिर मंसूब होगा, या फिर वो मजज़ूम होगा, या फिर क्या होगा? मजज़ूम होगा। तो इस हिसाब से इन्होंने ये आपके सामने रखा है। इंशाअल्लाह फिर मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन अभी यहाँ पे इसलिए नहीं समझाऊँगी कि नेक्स्ट इंशाअल्लाह आएगा तो आपको समझ आएगी। तो याद रखिए मुदारे से मुत्तल्लिक़ 3 अहम बातें हैं। नंबर 1 फ़ा कलमा से पहले अलामत मुदारे आना चाहिए। देखिए आप अलामत मुदारे ना या ता हमज़ा नून ठीक है? और फ़ा कलमे पर अलामत सुकून और आइन कलमे पर फ़तह। याद रखिए क्या है मुदारे की 3 अहम बातें जब आप मुदारे की गर्दान बनाएँगे तो नंबर 1 हमेशा फ़ा कलमे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अलामत मुदारे आएगी या ता हमज़ा नून। नंबर 2 फ़ा कलमा हमेशा सुकून वाला होगा और आइन कलमे पर फ़तह आएगी। आइन कलमे पर फ़तह आएँगी। चलिए, अब आप देखिए तो हम इसको थोड़ा-सा देखते हैं इंशाअल्लाह तो आपको थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी ना। अब आप देखिए यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना ठीक है? और यफ़अलना ये सारे सीगे या के हैं, या से शुरू होते हैं, ये अलामत मुदारे बता रहा है ना। इसी तरह देखिए तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। तो ये कितने हो गए 3, 3, 3 और 2 तो ये 8 सीखे हैं जो ता से शुरू हो रहे हैं, 4 सीगे या से शुरू हो रहे हैं। अफ़अलु जिसे कहा जाए सिर्फ़ एक सीगा है जो हमज़ा से शुरू हो रहा है और नफ़अलु एक सीगा है जो कि नून से शुरू हो रहा है। तो इन चारों को यानी जो 4 आपके या वाले सीखे इन सब में आपको या नज़र आएगी अलामत मुदारे। जो नेक्स्ट 8 हैं उसके अंदर आपको अलामत मुदारे ता नज़र आएगी और फ़ा कलमा सुकून के साथ नज़र आएगा। और फिर आप अगर गौर से देखेंगे तो आइन कलमे पे सब पे फ़तह आ रही है, ठीक है ना? एंड देन अगर आप तीसरी कैटेगरी देखेंगे तो आप देखेंगे अफ़अलु हमज़ा है और नफ़अलु नून जिसे कहा जाए वो जिसे कहा जाए अलामत मुदारे है, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुदारे के लिए अंदर थोड़ी-सी बात अहम है जो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। या
ٹھیک ہے، تھوڑا-سا انشاءاللہ آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضارع سے متعلق بہت اہم بات ہے، نمبر 1 یفعلُ، ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کون-کون سے 5 صیغے؟ یفعلُ، تفعلُ، تفعلُ، افعلُ، نفعلُ، یہ 5 صیغے ہیں، یاد رکھیے یہ 5 صیغے یفعلُ، تفعلُ، تفعلُ، افعلُ، نفعلُ، ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آپ دیکھیے لگا ہوا ہے، یفعلُ میں یا، تفعلُ میں تا، تفعلُ میں تا، افعلُ میں حمزہ، نفعلُ میں نون، ٹھیک ہے؟ اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں، آپ دیکھیے لام دمّلُ، تفعلُ، تفعلُ، یفعلُ، افعلُ، نفعلُ، تو آپ دیکھیے لام کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہے، تو ان کا اعراب یعنی ضمہ، فتحہ اور جزم سے جسے کہا جائے متعین ہوگا۔ مراد ہے کہ جب ہم ان کا اعراب دیکھیں گے، یہ 5 جو آپ کے صیغے ہیں، ان کے اندر جب مجھے اور آپ کو اعراب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، تو ہم لاسٹ لیٹر کی حرکت کو دیکھیں گے کہ ضمہ پہ اینڈنگ ہے، فتحہ پہ اینڈنگ ہے یا جزم پہ اینڈنگ ہے۔ اگر ضمہ پہ اینڈنگ ہے تو مرفوع، فتحہ پہ اینڈنگ ہے تو منصوب، ضمہ پہ اینڈنگ ہے تو مجزوم، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 صیغے یفعلُ، تفعلُ، تفعلُ، افعلُ، نفعلُ، آپ ان سب کے اندر علامت مضارع دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کلمے کے بعد کسی لیٹر کا اضافہ نہیں ہوا۔ تو جب ہم ان کا اس کے اعراب کو ڈٹرمن کریں گے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ لام ضمہ لو ہے، اس کا مطلب ہے یفعلُ ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرفوع حالت ہے، یفعلَ لام پہ فتح ہے، اس کا مطلب ہے یہ منصوب حالت ہے، یفعل لام پہ جزم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی مجزوم کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ باقی جو نیکسٹ آپ کی جو 7 صیغے ہیں جو آپ نے دیکھا تھا، ان 7 صیغوں میں ان سے پہلے آپ نے دیکھا علامت مضارع آئے گی اور لام کلمے کے بعد یا نون، الف نون، واو نون کا اضافہ ہے، یفعلانی الف نون کا اضافہ ہے، یفعلون واو نون کا اضافہ ہے، تفعلانی الف نون کا اضافہ ہے، تفعلانی الف نون کا اضافہ، تفعلون واو نون کا اضافہ، تفعلین یا نون کا اضافہ، تفعلانی الف نون کا اضافہ۔ تو یہ پہلی کیٹیگری وہ 5 صیغے تھے۔ اب سیکنڈ کیٹیگری جو مضارع کی وہ یہ 7 صیغے ہیں۔ یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے یہ جو ہے یعنی ان میں کیا ہے علامت مضارع لگی اور اینڈنگ میں الف نون، یا نون، واو نون کا اضافہ ہے۔ تیسری بات ان کا اعراب کیسے پتا چلے گا؟ اگر یفعلانی ہے یعنی الف نون پریزنٹ ہے تو آپ کہیں گے حالت رفع ہے، یہ مرفوع حالت ہے، اور اگر الف نون ایبسنٹ ہے یعنی یفعلا ہے، نون ڈراپ ہو گیا، یعنی نون اگر نون موجود ہے یفعلانی تو آپ کہیں گے کہ یہ حالت مجزوم مرفوع حالت ہے، لیکن اگر نون ڈراپ ہو گئی یفعلا تو آپ کہیں گے یہ اس کی جسے کہا جائے نصبی یا جری حالت ہے، جزمی حالت ہے، جزمی حالت ہے۔ تو نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے آپ اس کے اعراب کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ یہ دونوں صیغے دونوں مؤنث کے صیغے یفعلنا، تفعلنا، دونوں میں علامت مضارع موجود ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، ان پر کوئی بھی جسے کہا جیسے آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے 3 کیٹیگری میں 14 صیغوں کو ڈیوائڈ کر دیا، پہلی کیٹیگری میں 5 صیغے تھے، سیکنڈ کیٹیگری میں 7 صیغے تھے، 7 اور 5 کتنا ہو گیا 12، اینڈ لاسٹ میں یہ 2 صیغے جو کہ بہت اہم ہیں، دونوں مؤنث کے صیغے یفعلنا، تفعلنا، یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، یہ تینوں شکلوں میں ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، یفعلنا حالت رفع، یفعلنا حالت نصب، یفعلنا حالت جزم، تفعلنا حالت رفع، تفعلنا حالت نصب، تفعلنا حالت جزم۔ تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو مزید ایمفیسائز کر دوں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ کا ہوم ورک یہ کہ آپ نے پوری گردان بنانی ہے اور خود سے دیکھے کہ کیسے آپ بنا رہے، ایک دفعہ پریکٹس کیجیے تیزی سے، یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، تفعلوا، تفعلانی، یفعلن، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلوا، نفعلوا، انشاءاللہ۔
آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہ گردان بنا کے گروپ میں بھیجنا ہے جو آپ کا گروپ ہے۔ جزاک اللہ خیرًا کثیرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے دے اور ہمیں صحیح سے اپنے رب کا کلام سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔